Dear students, Assalamu alaikum. It's Unit 5, the Medina Charter, the Urdu translation. The Medina Charter in Urdu means Misaq-e Medina. Now some hard words from the lesson are abolish, khatam karna, finish, bring to an end. Abandoned, tark karna, give up. Bloodshed, khoon-rezi, killing or murder. Charter, misaq, written statement about rights. Community, bradri, a group of people living together. Convert is a person who changes his or her religion or ideas. Tabdeel karna. Creed, akida, faith, religion. Declaration, elan, manshoor, manifesto. Harmony, hamahangi, state of perfect existence. Incorporation, shamuliyat, inclusion. Inhabited, rehte the, lived. Liability, zimmedari, responsibility. Migrated, hijrat ki, moved from one place to another or shifted. Offense, jurm, gunah ya crime. Proclaim, ऐलान करना, make known publicly. Signatory, मुआहदे पर दस्तखत करने वाला, a person who signs a document. Thick and thin, हर हाल में. Stood by in good as well as bad times. Kith and kin, aziz और रिश्तेदार, close relatives. Now I'll start with the lesson. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, the city was inhabited by different sections of people. जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो उस शहर में मुख्तलिफ किस्म के लोग आबाद थे. They were the faithful followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. They were known as muhajirin or refugees. इनमें खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वफादार पैरोकार थे जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत की. इनको मुहाजिरीन या पनाहगुज़ीन कहा जाता था. The new converts of Medina who had helped the Prophet sallallahu alaihi wasallam through thick and thin, they were known as Ansar or helpers. मदीना के वो 9 मुस्लिम जिन्होंने हर तकलीफ़ में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, वो अंसार या मददगार कहलाए थे. मदीना में रहने वाले और दूसरे ग्रोह के बुत परस्तों और यहूदियों के थे. In order to create harmony and mutual cooperation, the Prophet sallallahu alaihi wasallam first abolished the tribal distinction and grouped the inhabitants of Medina. पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमाहंगी और ताउन पैदा करने की गर्ज से पहले तो कबायली इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया और मदीना के तमाम बाशिंदों को एक नाम अंसार या मददगार दे दिया. One general name, Ansar or helpers, he sallallahu alaihi wasallam knew that goodwill and support of all the sections of the people was necessary for the creation of an Islamic empire. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक इस्लामी रियासत की तख्लीक के लिए तमाम तबकों की खैर सगाली और हिमायत ज़रूरी थी. He sallallahu alaihi wasallam knew the tolerance of other religions is essentially necessary when different races live together. आप सल्लल्लाहु जानते थे कि बर्दाश्त बहुत ज़रूरी होती है जब मुख्तलिफ तबकों के लोग इकट्ठे रहते हैं. With these objectives in mind, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had granted a charter which is generally known as Medina Charter. इन मकासद को जहन में रखते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाक वज़ा किया था जिनको आम तौर पर मिसाक मदीना कहा जाता है. The main points of the charter are, इस मिसाक के अहम नुकात ये हैं. All the communities signing the charter would form the common nationality. मिसाक पर दस्तखत करने वाले तमाम तबकों की कौमियत एक होगी. If any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend. मिसाक पर दस्तखत करने वाले किसी तबके पर अगर किसी दुश्मन ने हमला किया तो वो दूसरे तबके को मजमूई तौर पर उसका दिफा करेंगे. Muslims, Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. इस जमहूरियत के मुसलमान, यहूदी और दूसरे तबके अपने मज़हब और मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आज़ाद होंगे. Individual and personal offences of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. किसी गैर मुस्लिम सरदार
या किसी गैर मुस्लिम से सरजद होने वाली मामूली नौइयत की इनफरादी ज़्यादती गलती को इसी हैसियत से देखा जाएगा और इसके लिए उस तबके को पूरा मुरद इल्ज़ाम नहीं बनाया जाएगा जिससे इसका ताल्लुक है। द ऑप्रेस्ड शुड बी प्रोटेक्टेड, मजलूम की मदद की जाएगी। हैंसफोर्थ ब्लडशेड, मर्डर एंड वायलेंस शुड बी हराम, इसलिए मदीना में किसी किस्म की खूनरेज़ी और कत्ल हराम होगा। ऑल डिस्प्यूट शुड बी रेफर टू डिसीजन टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, तमाम तनाज़ात के फैसले के लिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाएंगे। द इम्पोर्टेंस of the charter lies in the fact that it announces the great principles of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance. इस मीसाक की अहमियत इस हकीकत से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मीसाक शहरी मसावात, मजहबी आज़ादी और नस्ली बर्दाश्त के असूल वज़ा करता है। The principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. इस असूल को तख्लीक़ पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। आवर फाउंडर कायद आज़म क्लियरली टोल्ड हिज पीपल इन 1947, हमारे बानी कायद आज़म ने तख्लीक़ पाकिस्तान के वक्त 1947 में वाज़े तौर पर अपने लोगों को बताया था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप आज़ाद हो, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो और आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मस्जिदों या किसी दूसरी इबादत की जगह जाने के लिए आज़ाद हो। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, अकीदे या नस्ल से हो सकता है। हम एक रियासत के बराबर शहरी हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट। In 1948, the General Assembly of the UN unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1947 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। The Declaration proclaims the religious, personal, civic, practical, economic, social and cultural rights of human beings. ये मंशूर इंसानों के मजहबी, ज़ाती, शहरी, सियासी, माशी, समाजी और सकाफ़ती हकूक़ का ऐलान करता है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ मदीना चार्टर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अक़वाम मुत्तहिदा का हकूक़ इंसानी के आलमी मंशूर में मीसाक़ मदीना की शिकों को शामिल करना ये ज़ाहिर करता है कि इस्लाम हकूक़ इंसानी का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। नाउ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस चार्टर वॉज अप्रूव्ड ऑन 10 December 1948 एंड मेड पब्लिक। इस मीसाक को 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया और इसका ऐलान किया गया। देर आर 30 पॉइंट्स इन ऑल, फ्यू आर बीइंग मेंशन्ड हियर। इस मीसाक के 30 नुकात हैं या छिके हैं जिनका बयान यहाँ किया जा रहा है। वी आर ऑल फ्री एंड इक्वल, वी आर ऑल बॉर्न फ्री, वी ऑल हैव आवर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़, वी शुड ऑल बी ट्रीटेड इन द सेम वे। हम सब आज़ाद और बराबर हैं, हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं, हम सब के अपने ख्यालात और तसव्वुरात हैं, हम सब के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। डोंट डिस्क्रिमिनेट, दीज राइट्स बिलोंग टू एवरीबडी वट एवर आर डिफरेंसेस आर। ये हकूक़ सब के लिए हैं, ख़ुद हमारे इख्तलाफात कितने भी हों, इम्तियाज़ात पर डिफरेंसेस के होते हुए भी हमें एक हमारे जो हकूक़ हैं वो बराबर हैं। वी ऑल हैव द राइट टू लाइफ एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी। हम सबको ज़िंदा रहने और आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ से जीने का हक़ हासिल है। नोबडी हैज़ एनी राइट टू हर्ट अस और टू टॉर्चर अस। किसी को हमें नुकसान पहुँचाने का और हमारे हकूक़ हासिल करने का हक़ नहीं। वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ इज़ सेम फॉर एवरीबडी, इट मस्ट ट्रीट अस ऑल फेयरली। हम सबको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कानून सबके लिए बराबर है, इसका बस बर्ताव हम सब से जायज़ होना चाहिए। वी ऑल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी हुकूमत में हिस्सा लेने का हक़ हासिल है। We all have the right to lead a good life. Mothers and children, people who are old, हम सबको अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। Unemployed or disabled and all people have the right to be cared for. हम सबको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। माँओं और बच्चों, तमाम बूढ़ों, बेरोज़गारों और माजूरों, तमाम लोगों को देखभाल का हक़ हासिल है। एजुकेशन इज़ अ राइट, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री। तालीम एक हक़ है और
प्राइमरी तालीम मुफ्त होनी चाहिए। वी हैव अ ड्यूटी टू अदर पीपल एंड वी शुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। हम पर दूसरे लोगों के भी हकूक़ हैं और हमें इनके हकूक़ का आज़ादाना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए।